Good evening, India walo, and good morning, US walo. A very warm welcome to all our Barkada friends once again. It is wonderful to see so many of you gathered here today after a long time for this special interactive session with Dr. Singh. As we grow older, good health becomes one of our greatest priorities. We are therefore privileged to have with us Dr. P.C. Singh today, an experienced geriatrician who has devoted his career to the health and well being of senior citizens. On behalf of all the members, I extend a heartfelt welcome to Dr. Singh and sincerely thank him for sparing his valuable time to be with us today. We look forward to learning from his vast experience and having our questions answered during this interactive session. I also thank each one of you for joining today's meeting. Your enthusiastic participation will make this session even more meaningful and beneficial. With these words, I request Mr. R.K. Dikshit ji to say a few words introducing Dr. Singh and inviting him to begin the session. Thank you all, and I wish everyone a very informative and enjoyable evening. Dikshit sir, please. Sir, unmute कर लीजिएगा. Hello everybody. Yeah. सभी को बहुत बहुत नमस्कार. डॉक्टर सिंह आ गए हैं साइट पे और अब मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ पहले सोच रहा था कि कुछ इंट्रोडक्शन दें, पर लेट हो गया ज़्यादा, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर साहब से कि स्ट्रेट अवे टॉक पे आ जाएं. बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब हमारे बहुत पुराने मित्र हैं. हम लोग लंगोटिया आ रहा एक तरह से समझ लीजिए. अगल बगल में रहते थे कानपुर में. इनकी कानपुर में बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी और इनको किसी कारणवश यहाँ पे अभी शिफ्ट हो गए हैं, यहाँ पे क्रॉसिंग रिपब्लिक में, जो कि ग्रेटर नोएडा के जस्ट पास है, नेक्स्ट है, और यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं. और अभी भी 83 इयर्स की ओल्ड एज में भी ये काफी यंग है. आप मिलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. तो अभी डॉक्टर साहब, मैं ज्यादा इंट्रोडक्शन ना देते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज अपने टॉपिक पे हमको अवगत कराइए, हमसे बात कीजिए. थैंक यू. डॉक्टर साहब, yes. आप अनम्यूट कर लीजिए. अनम्यूट कर लीजिए अपने को. नीचे देखिएगा माइक बना हुआ, उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो हो जाएगा. अनम्यूट करिए अपने को. डॉक्टर साहब, सुनाई नहीं दे रहा है यहाँ पे? आपने म्यूट पे रखा हुआ है. Yes. Now is it okay? Yes, okay. Okay. So thank you very much, Raghavan ji, and good evening to all of you, and especially Mr. Arvind and Mrs. Madhu Agarwal. She guided me to join you on Zoom. Otherwise, I couldn't have done it. So anyway, so time is short, so I'll come straight to the point. And I'll focus mainly to the people who are above 70 years of age, because up to 70 years of age, everybody is young. They don't have much problem. But after 70, the problems start coming to you. So first thing first, that the elderly people, all those who are near 70 or above 70 should not get injured. So for this, they have to use bath mats in their bathrooms. The bathroom floor should not be slippery. So the best is that those plastic stripes were serrated and those don't allow you to slip on it. So it's a must having those slip-proof bathroom mats in your bathroom. Secondly, sit down when changing trousers. This is very important. If you fall, you will have a hip joint fracture and that ruins the life. Thirdly, use staircase railings. Don't think that you are young and you can do without staircase railings. You have to use or you have to hold the railings while you are climbing up
or climbing down the stairs, because I saw so many people getting hurt and even getting brain hemorrhage after falling from stairs. US and other countries are much better about it, because on stairs they have thick carpets. So even if somebody falls, they don't get injured. But here in India, mostly these are marble stairs, and there the chances of injury are much more. Then third thing, use a walking stick. If you go for a walk, have a stick. Otherwise, a dog will bite you in India. So it's a must to have a stick in your hand. And the next point comes how to prevent you from the diseases which kill old people. Any of you guys know why after 70 years of how people above 70 they go to Almighty God? What disease is there when they have to go to the God, or when they are dying? What is the disease, the commonest one? Can anybody answer after unmuting? ओके होते हैं और बात वॉशरूम वगैरह चले जाते हैं विदाउट अच्छा ठीक है. Okay, so it is pneumonia. Most old pneumonia, yes. people die of pneumonia. So it's a must for every elderly person or diabetic person to get vaccinated against pneumonia, influenza, and shingles vaccine. Shingles is herpes zoster, and that is a very painful disease, and life becomes hell after when somebody gets herpes zoster. And it's a Amitabh Bachchan is giving advertisement on the television about herpes. They call it shingles also, but getting vaccines, number one is influenza once in a year, pneumonia once in lifetime, and shingles vaccine too at a 6 months interval. And then when it is safe, when it's safe to walk on the roads or in a park, when you go for a walk, mind the weather. If it's too hot, don't go. If it's too cold, don't go. If it's stormy weather, don't go, because we are more vulnerable to injuries in such weather. Heat can give us heat stroke. In France, more than 1,000 people have died in France because of heat, and the temperature was not as much as it is in India. So you are not supposed to go out in hot weather, very hot weather, and a very cold weather, because it can give you trouble. And it's raining, of course, you don't go while it's raining, but mind if it's stormy, you can get injured with the falling tree branches. And to keep fit, you have to do yoga or some sort of exercise if you are not doing it already. And for diet, the old people said, our ancestors said, eat early by 7 p.m. before sunset, and that's a very good thing, because in old age our stomach is not smart enough to digest the food. So if you take your food early, it gets more time to digest, more time for the intestine to pass it forward. Otherwise, it comes back into your throat and gives you aspiration pneumonia. This is very important. Eat early, and there should be a lot of protein in your food, because in old age we lose muscles, and for that protein is needed. Protein means either animal products like fish, egg, or meat, or paneer, or soybean, whatever. Some protein must be there in your diet. Fruits, very important, because they give vitamins, energy, and fibers. So they keep your tummy full. And then and keep your bowels healthy. म्यूट रखो. हाँ, sorry. Sorry, are you talking to me? म्यूट तो रहने. अच्छा, okay. Is it okay? Is it okay? Can you hear me, guys?
हम लोग सब म्यूट पे हैं इसलिए आवाज नहीं आएगी. हमने अभी अनम्यूट करके अच्छा, आपको कहा हुआ आगे चलिए. ठीक है. Okay. And in old age, one should not get constipation because old people either die of pneumonia or constipation. If there is constipation for more than 3 days, get anemia. Otherwise, you are going on surgeon's table and they will operate upon you. And the result in it is in God's hand. Maybe you survive or not. But in old age, surgery is, risky. And symptoms of pneumonia, I'll talk about it. In old age, to cough, you need a lot of power in your lungs rather than your muscles, intercostal muscles or your rib muscles. You need a lot of power in rib muscles to cough, and in your diaphragm. जो लोग मीट खाते हैं वो जानते हैं डायफ्राम क्या होता है. डायफ्राम का कीमा बनता है. It's a wall between chest and abdomen. That is made of muscles, and that becomes weak. So old people cannot cough loudly. जब बुढ़े को खांसी आती तो ऐसे खांसते हैं. बच्चे समझते हैं कि ये बुढ़े हमेशा खांसते रहते. They ignore it and the person dies of pneumonia. So अगर थोड़ी सी भी खांसी है, हल्की हल्की हो रही, don't ignore it. Get your TLC, DLC or CBC done and X-ray done because it could be pneumonia. Because in old age, immunity is low, it's very easy to get pneumonia. So vaccination against pneumonia is important. So this is in short. I think already we are late. So I would love to answer questions asked by you guys. अभी जिसने भी क्वेश्चन पूछना है वो अनम्यूट कर लीजिए एंड यू आर वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस. अनम्यूट कर लो. सारे लोग अनम्यूट कर सकते हैं. एक एक करके एक सवाल पूछ सकते हैं. कोई धवन साहब. I would love to hear cacophony. करो अनम्यूट किया. डॉक्टर साहब, जैसे लोग कहते हैं आफ्टर 65 और 70 यू मस्ट हैव अ ब्लड थिनर, तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मतलब कोई कहता लेना चाहिए, कोई कहता नहीं लेना चाहिए. इफ इट इज रिस्की, मान लीजिए अगर कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे डायबिटीज है या हाई ब्लड प्रेशर है या कोई और बीमारी है, जो उस तब लेना चाहिए. अदरवाइज जो ब्लड थिनर्स होते हैं वो भी रिस्की होते हैं. दे कैन कॉज ब्लीडिंग इन आवर इंटेस्टाइन्स. तो इसलिए जब तक डॉक्टर रिकमेंड ना करे ब्लड थिनर भी मत लीजिए. Baby aspirin is okay. Yeah, Baby aspirin 81. baby aspirin, they say, Yes. but it's not good for everybody. You have to take doctor's opinion regarding this, because there are many risk factors where you cannot take aspirin. Either you are allergic to aspirin, or you have some acidity problem, or it is not needed in persons who have normal blood pressure. They don't have any lifestyle disease or medical problem where it is not needed. So it's not a must, but take your doctor's opinion before taking any aspirin. Don't take it by yourself. Okay, fine. डॉक्टर साहब, हम सब एक लोग चीज- कहते हैं कि हमें जी। गिरना जो है बहुत रिस्की है. हम सब लोग कोशिश करते हैं कि नहीं गिरें, पर फिर भी कभी कभी हो जाता है कि गिर जाते हैं. तो जी। अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए कुछ कर जी। सकते हैं, सम एक्सरसाइज जो हमें हेल्प करेगी स्टेबिलिटी बढ़ाने में. Nothing helps. Actually क्या होता है कि with age our higher functions of cerebellum, it's the back part of our head which gives balance to our body, उसके cells जो है वो dead होने लगते हैं. So in old age you don't get a good balance. That's why one person tends to fall. So always such persons who have any problem in walking, or they have some dizziness or something, they must use a stick. Right. Because it's a natural process. The brain cells tend to die with age.
So that they cannot come back. So it is better to use a walking stick so that you don't fall. And keep your eyes where you are putting your foot. I mean, before stepping anywhere, you have to look down. Don't look forward. If a beautiful lady is passing, don't look at her. Look at the stairs. Look at the ground. अब करो उसके भी क्या कर लोगे यार? वो तो beautiful ladies are always there. Young beautiful ladies are always there to harm you. डॉक्टर साहब एक चीज और पूछनी थी। जी हेलो जी हाँ जी, ये ओल्ड एज के अंदर वो कहते हैं बड़े सारे सप्लीमेंट्स वो मार्केट में अवेलेबल हैं, और फिश ऑयल है और ग्लूको और कितनी तरह के मार्केट में अवेलेबल हैं। जी जी और कितने रिकमेंड करते हो, दिन कितने खाने I don't recommend. I recommend them natural food. If protein is needed, eat fish, eat egg, and one egg a day is enough, not more than that. Natural food is much better. For protein, you have to take paneer, or rather deshi paneer, not cheese नहीं, पनीर मार्केट लीजिए। में तो प्रोटीन के भी प्रोटीन पाउडर और कितनी तरह की सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं प्रोटीन के लिए। वो आजकल मैं आपको बोलता हूँ कि आजकल जो लड़के पैदा तो हुए हैं मतलब हैं 40-45 किलो के और प्रोटीन सप्लीमेंट खा के दारा सिंह बनना चाहते हैं, वो लेते हैं। तो वो बंदा वही होता जो उसके फादर थे। जब एक एज पे आते हैं, अपने फादर की एज में आते हैं, सब अपने फादर जैसे हो जाते हैं। चाहे जितना प्रोटीन सप्लीमेंट लें, चाहे जितना देशी घी पिए, कुछ भी नहीं होगा। वो दे विल लुक लाइक देयर पेरेंट्स। तो इसलिए आई डोंट रिकमेंड सप्लीमेंट्स। टेक नेचुरल फूड। जो भी फल फूल जो भी है, फिश खाते हैं, मीट खाते हैं, या मीट ज्यादा नहीं लेना चाहिए, फिश है, एग है, पनीर है, सोयाबीन है, ये जो नेचुरल फूड है वो लेने चाहिए। सप्लीमेंट में दवा कंपनी मोटी होती है, हमारा मरीज दुबला हो जाता है। ऑल दीज सप्लीमेंट्स सर, all these supplements are betterment of the pharmaceutical industry, not for they are not for your health, they are for their own health. ओके धवन साहब अपना जरा ऊपर हो जाइए, शक्ल नहीं दिख रही ठीक से। जी एक और बड़ा डॉक्टर साहब वो रहता है, पीपी के मेडिसिन हमें कब लेनी चाहिए, मॉर्निंग में कि रात में? रात में, because most episodes or most accidents because of blood pressure occur early in the morning from 3 a.m. to 7 a.m. and usually in your washroom. Kyonki there is a phenomena called essential hypertension. When we sleep, the circulation goes down and our kidneys produce more catecholamines, that means adrenaline and noradrenaline, which raise our blood pressure. So the blood pressure is highest from 3 a.m. to 7 a.m. and that is the danger time. So one has to take, preferably one has to take BP medicine in after dinner. But some BP medicines are there where there is a diuretic in it, which causes more of urination, more of micturition, then it has to be taken in the morning. But I give it to my patients, all antihypertensive drugs without diuretics in the night time at about 9 p.m. to protect them in the early morning or wee hours of the day. और डॉक्टर साहब मैं कई बार ये वीडियो कहना ये है कि आपने मेडिसिन लिया और पता चला ब्लड प्रेशर नीचे हो गया तो आदमी सोता सोता चला गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो तो लेडीज भी खाने में नमक नाप के डालती हैं, तो बीपी की दवा भी नाप के दी जाती है। ऐसा थोड़ी कि अंधाधुंध खिला दी, दुश्मनी थोड़ी है। हमें डॉक्टर सुबह शाम दोनों टाइम लेनी है। क्या चीज? बीपी की दवा? हाँ, मॉर्निंग इवनिंग बहुत टाइम। हाँ, दोनों टाइम
अगर जरूरत है तो 2 टाइम नहीं, 1 टाइम में काम चल जाता तो 1 टाइम। लेकिन जिस दवा में पेशाब लाने की दवा, जैसे हाइड्रोक्लोरथायाजाइड है या क्लोरथैलिडॉन है या फिर टॉर्सिमाइड है, वो दवा सुबह लेनी चाहिए, नहीं तो फिर रात भर उठना पड़ेगा। डॉक्टर और साहब, जो आप नॉर्मल, बात कर रहे थे ब्लड थिनर की, तो जी जी, हाउ टू डिसाइड ब्लड थिनर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? उसके लिए क्या पैरामीटर्स देखने चाहिए सर? क्या चीज, सॉरी, विल यू प्लीज ये जो रिपीट योर क्वेश्चन? हाँ, जी मैं पूछ रहा था सर, ये जो ब्लड थिनर की बात हम कर रहे थे कि जी, ज्यादा नहीं लेना चाहिए, तो हाउ डू वी डिसाइड ऑन व्हाट पैरामीटर वी शुड डिसाइड कि लेना है नहीं लेना है? डॉक्टर यस सही यस, करेगा। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। जो ब्लड थिनर है वो कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, जैसे किसी को अल्सर की हिस्ट्री है या ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या उसको खाने की थैली में अल्सर था या एसिडिटी है या एस्पिरिन से एलर्जी है, उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एस्पिरिन से एसिडिटी भी होती है और अल्सर को वर्स कर सकती है। तो यू हैव टू आस्क योर डॉक्टर टू टेक और नॉट टू टेक। अच्छा, मेरे को ना सर वो पेस मेकर लगा हुआ है कुछ 10-12 साल हाँ पहले। तो हाँ हाँ नॉर्मली मेरा ब्लड प्रेशर वगैरह ज्यादा हाई नहीं रहता, नॉर्मली रहता है। बट डॉक्टर जी। हैज टोल्ड मी कि आपको ब्लड थिनर लेना चाहिए हमेशा के लिए। जब पेस मेकर लगा है, दैट मीन्स देयर इज प्रॉब्लम विद योर हार्ट, यू हैव टू टेक इट। ओके, वो तो लेना ही पड़ेगा, अगर हार्ट लेना में ही पड़ेगा। प्रॉब्लम है तो लेना ही पड़ेगा। एक बात और है, जब हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो एस्पिरिन 75 मिलीग्राम लेते हैं अच्छा, आफ्टर फूड, आफ्टर डिनर। लेकिन आफ्टर अगर डिनर। ब्रेन में प्रॉब्लम है, ब्लड क्लॉट वगैरह ब्रेन में हुआ, देन द डोज इज 150 मिलीग्राम। अच्छा, दूसरा, जब एस्पिरिन नहीं सूट करती तो देयर इज एन ऑल्टरनेटिव, क्लोपिडोग्रेल। ओके, Clopidogrel 75 milligram is given, which doesn't cause acidity. But before giving these blood thinners, one has to inquire about bleeding disorders. जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते, किसी किसी व्यक्ति में क्या होता, ब्लड क्लॉट नहीं होता, तो अगर ब्लड थिनर लेंगे तो फिर कंडीशन तो वर्स हो जाएगी। तो वर्स हो यू हैव जाएगी। टू टेक योर डॉक्टर्स परमिशन फॉर दैट, ठीक है, अपने मन से नहीं। हाँ ठीक है सर। एक और क्वेश्चन था सर, ये जी, जो मोस्ट वेलकम। नॉर्मली इस एज में लोगों के नी प्रॉब्लम रहता है, मोस्ट ऑफ देम, हाँ तो हाँ, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और क्या करना चाहिए सर? रिप्लेस करो। usually osteo, that we call it osteoarthritis knee, ये उन लोगों में ज्यादा होती जो वेजिटेरियन होते हैं, जिनमें कैल्शियम की कमी होती है। तो कैल्शियम की कमी वेजिटेरियन लोगों में ज्यादा होती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम का सोर्स जो होता है एनिमल प्रोडक्ट्स में होता है। तो जो वेजिटेरियन जो लोग होते हैं, और खास करके लेडीज जो नॉन वेज वगैरह नहीं खाती, एग नहीं खाती, उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो नी के जो बीच में जो कार्टिलेज होती है, सॉफ्ट बोन होती है ऊपर वाली, और नीचे फीमर और टिबिया के बीच में वो घिस जाती है। बट दैट इज यूजुअली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। तो कैल्शियम लेते रहना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर जी, डॉक्टर वेलकम। साहब, थैंक यू, आपने बताया थैंक कि यू। एनी अदर थिंग? डॉक्टर साहब, अगर हेलो, एक मिनट, कैल्शियम कौन लेने कौन पर पूछना चाहता है? नाम बताओ भाई। डॉक्टर साहब, मेरा एक हाँ आपने जी, अभी बताया कि कॉन्स्टिपेशन कैन बी वेरी रिस्की, तो हाँ, कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या करें? सबसे आसान इसबगोल की भूसी, कहते एक बार एक डॉक्टर इसबगोल से की बात हो भूसी। रही थी, ये सब कोई खुशी करे। नहीं वो रिकमेंड नहीं कर रहे थे, कहते वो भूल जाती है। बताओ। एक बार ऐसे एक डॉक्टर से बात होने लगी तो कह रहे जी, थे कि इसबगोल की भूसी फूलती है, तो यू शुड नॉट टेक इसबगोल की भूसी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज कॉन्स्टिपेशन के लिए देती है, वो सब में इसबगोल की भूसी होती है, चाहे लैक्टोफाइबर हो। वो हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स होती हैं। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब जो पानी को खींचती, पानी सोखती हैं, तो दैट गिव्स
bulk to the stool and dissolves the hard stools as well. तो वो स्टूल को बल्क देते हैं। अदरवाइज मैनी प्रिपरेशंस आर अवेलेबल जो कि ली जा सकती हैं। डॉक्टर साहब, और किसी का सवाल है? One should हाँ take डॉक्टर साहब statins. ऐसे है वन जी क्वेश्चन। नमस्कार जी। अक्सर मैं पूछना अच्छा चाह रही जो थी, पानी पीते हैं सोडियम कम हो जाता है, पानी पीते हैं तो सोडियम कम हो जाता है और डॉक्टर कहता है पानी कम करो, गर्मी में पानी पीना पड़ता है। हाँ तो ठीक है, तो सोडियम कितना कम हो जाता है? 124 125 चला जाता है। इसका मतलब पानी कम पिए, नमक ज्यादा लें। नमक ज्यादा ले। बिकॉज हाँ नमक ज्यादा लें, क्यों? हाइपोनेट्रीमिया इज डेंजरस। Hyponatremia means less of sodium in your body, and hyponatremia can kill elderly persons को समर के वेदर में। और अगर खास करके कोई डायरेटिक दवा ले रहे हैं जिससे पेशाब ज्यादा आती तो सोडियम लो हो जाता है। इट्स ए किलर। फर्स्ट सिम्टम इज नॉसिया, मिचली आती। सेकंड इज लॉस ऑफ एपेटाइट एंड थर्ड इज अनकॉन्शियसनेस। तो नमक लेना चाहिए, पानी घटा के और नमक बढ़ा देना चाहिए। अच्छा एक और भी कहते हैं जैसे सोडियम के लिए वो मतलब आपको ये हिमालयन सॉल्ट नहीं, आयोडीन वाला सॉल्ट लेना चाहिए। वो तो थायराइड के लिए होता है आयोडीन वाला सॉल्ट। ओके। हाँ Doctor साहब, how long one should take statins? यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैटिन्स लेने से लोग कहते हैं, दिस इज इट्स ए वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। एक्चुअली statins इट्स ए $1 billion business. Statin, Yes. it's a $1 billion business. लोग खिलाते हैं स्टैटिन्स, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि ये यूएस में स्टैटिन इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए स्टैटिन्स के फेवर में रिपोर्ट्स लिखाई गई हैं। तो मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तब तो स्टैटिन ले लीजिए, अगर हार्ट की प्रॉब्लम है मत लीजिए। बिकॉज स्टैटिन्स मेक्स ए पर्सन स्टूपिड। ये दो चीजें इसके, मैं स्टैटिन्स के साइड इफेक्ट्स बता सकता हूँ। और स्टैटिन्स जो होते हैं इट कॉजेस impotence, number 1, erectile dysfunction and a loss of memory, because the cholesterol is the food for brain. Yes. And cholesterol makes male hormones. तो statins लेने से male hormone भी कम हो जाएगा, causing you sex problems. And statins लेने से memory का भी फर्क पड़ेगा। आदमी का दिमाग तेज नहीं हो गया, आदमी का ब्रेन स्लो हो जाता है। Yes. और मेरे को तो सबसे फनी चीज, ऑल ऑफ यू विल लॉफ, मैंने स्टेटिन ली, मेरे कार्डियोलॉजिस्ट, मेरी पल्स इरेगुलर हो गई थी, वेंट्रिकुलर एक्टोपिक्स हो गए थे। उसने कहा आप स्टेटिन लीजिए रोज, वो एटोरवा स्टेटिन 10 mg ले लीजिए। मैं औरत बन गया। मुझे गायनोकोमेसिया हो गया, मतलब एक ब्रेस्ट मेरी बढ़ गई। मैंने बंद कर दिया। एंड यू सर, सर, आई एम रीचिंग 84 विद इन 2 months। और मैं स्टैटिन नहीं लेता, तभी मेरा दिमाग चलता रहता है। स्टैटिन ले लूं तो मैं जब बुद्धू हो जाऊंगा। स्टेटिक हो जाएंगे। हाँ स्टैटिक हो जाएंगे, स्टैटिस मेक यू स्टैटिक। तो डॉक्टर साहब, ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को फिर कैसे कंट्रोल करना होगा? खाने से। Eat fruits. Best thing to eat in this world is fruits. Eat fruits, you will not get any disease. लेकिन जो फल नहीं खाते, मैदा खाते, मैदा इज आवर एनिमी। हमारे इंडियन कल्चर में आटा और चावल जरूर खाते हैं। हमें नहीं मालूम आप यूएस में, इंडिया में कहाँ हैं? नहीं, मैं इंडिया में ही हूँ, लेकिन नॉर्मली यूके ट्रैवल करता रहता हूँ। हाँ, तो ये मैंने देखा है कि जो गोरे लोग हैं
वो जरूरी नहीं है कि रोटी कोई इंडियन के यहाँ जाएंगे तो खा लेंगे, चावल भी कहीं खा लेंगे, चाइनीज रेस्टोरेंट में नहीं खाते। द फर्स्ट थिंग दे ईट इज सैलेड्स। इतना बड़ा बोल होता है, फैमिली बैठ जाती है, 3-4 फोर्क डाल देते हैं और सब लोग सैलेड्स खाते हैं, जिसमें बेबी स्पिनच होता है और आपका कॉटेज चीज होता है और इस तरह से चेरी टोमेटो होता है, इस तरह की चीजें होती हैं। जी ऊपर से वो बाल्सम विनेगर होता है, बाल्सम डालते हैं, वो सब डालते हैं, नो सॉल्ट, और वो सब लोग खाते हैं। जब आधा पेट भर जाता है देन दे ईट मीट और चिकन और वट एवर दे लाइक, और उसके बाद में एक कोई डेजर्ट ले लिया, फ्रूट्स ले लिया, एंड दैट इज देयर लंच। हम लोग जब तक 6 रोटी या 4 रोटी ना खा ले तब तक पेट नहीं भरता। एंड दैट इज वाई इन इंडिया it is diabetic. India is a diabetic hub. China is second to India. India is a diabetic hub because we eat lot of carbohydrate, lot of white thing, माड़ वाली चीज ज्यादा खाते हैं. Second is China, where a lot of rice is taken, but they are better off than me because they eat lot many rubbish things. But हम लोगों की यहाँ सारी प्रॉब्लम मैदा खाने से, हम लोग जो भी खाते हैं सब मैदा ही होता है, मैदा या माड़ होता है। तो फॉर एल्डरली पर्सन्स बेकरी फूड इज वर्स्ट। बेकरी में जाना ही नहीं चाहिए, बेकरी में खरीद के लाइए तो खाली नहाने वाला साबुन लेके आइए। नो ब्रेड, नो बिस्किट्स, नो रस्क, नो केक, नो पेस्ट्री, यही तो सब डायबिटीज करती है। डॉक्टर साहब, स्लीप डिसऑर्डर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कई बार आंख खुल जाती है, नींद ही नहीं आती रात को। हाँ, इसके लिए देखिए, हाँ इसके लिए मैं बताता हूँ, सबसे अच्छा ये है कि उसको क्या कहते हैं, मेडिटेशन। हेलो, आर यू हियरिंग मी? यस यस। मेडिटेशन, ध्यान लगाइए। बगैर दवा के अगर नींद चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मुझे नींद नहीं आती, बड़ी मुश्किल पड़ती नींद की, तो मैं क्या करता हूँ, आंख बंद कर लेता हूँ और गायत्री मंत्र पढ़ता हूँ, बार बार गायत्री मंत्र पढ़ता रहता हूँ। और ये इमेजिन करता हूँ कि मेरे सामने गायत्री मंत्र लिखा हुआ फिल्म चल रही है। जैसे 10, 12, 15 बार गायत्री मंत्र पढ़ा तो नींद आ जाती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि टीवी, मोबाइल, सबके पास मोबाइल दूसरे कमरे में रखिए। माइक्रोवेव्स जो होती हैं मोबाइल का आपको सोने नहीं देती, दे इरिटेट योर ब्रेन। माइक्रोवेव्स, जब हमारे माइक्रोवेव से खाना गर्म हो जाता है और कान में मोबाइल लगाते हैं, कान गर्म हो जाता है, तो आप सोचिए सिरहाने मोबाइल रख के सोएंगे तो नींद कैसे आएगी? दैट इरिटेट्स योर ब्रेन। मोबाइल बहुत दूर होना चाहिए, 10 फीट से दूर होना चाहिए, और टीवी चला के नहीं सोना चाहिए। 10 फीट दूर हो रहा है। हाँ, और दूसरा टीवी अगर चलाएंगे तो गामा रेज निकलती हैं, वो भी 10 फीट से कम नहीं होना चाहिए। टीवी चला के सोना नहीं चाहिए जी। हाँ, नहीं वो तो डरावनी फिल्में दिखाएंगे और गंदी फिल्में दिखाएंगे तो आप सो भी नहीं पाएंगे। जल्दी मेडिटेशन शुड हेल्प। यस। क्षमा करिएगा, कुछ गलती हो गई तो। Anybody else? डीके जी कुछ पूछना है? और अगर एक बात और बताऊं, एक चीज मैं और कहूंगा, कुछ लोगों को रात में बार वॉशरूम जाना पड़ता है जी तो उसमें रिस्क होती है गिरने की। जी। आप बार वॉशरूम नहीं जाइए, या तो आपके बेडरूम से बिल्कुल जुड़ा हुआ हो, फिर भी थोड़ी रिस्क होती है। आप एक डब्बा रख लीजिए ढक्कन वाला, उसमें कर लीजिए। डोंट गो टू वॉशरूम टू ऑफन इफ यू आर मोर देन 80 years of age। थोड़ी रिस्क होती है वॉशरूम जाने में रात में। कई लोग तो मैंने देखा कि वो कमोड पे बैठे तो उठ ही नहीं पा रहे।
दिक्कतें होती हैं बहुत एज के साथ में, कहीं घुटना दर्द करता है, कहीं कमर दर्द करती, कहीं कुछ होता है, तो इसलिए कैल्शियम लेना बहुत जरूरी है। आपने डॉक्टर साहब एक बार कैल्शियम की वो इंजेक्शन की बात की थी, वो जब बताइए थोड़ा सा। वो कैल्शियम का इंजेक्शन जिसको जरूरत हो, जिसको दर्द वर्द ज्यादा हो, घुटने में हो या कमर में दर्द हो, तो कैल्शियम का इंजेक्शन लगाते हैं। और मुझे तो डॉक्टर ने मना किया कि कहते हैं कि किडनी की प्रॉब्लम, हमारे पास एक किडनी है तो किडनी हाँ, इफेक्ट, दूसरी इफेक्ट होती, तो किडनी की प्रॉब्लम में कौन सा कैल्शियम रोज नहीं। हमेशा थोड़ी लगवा रहे हैं, स्मॉल डोज डजंट मैटर। अच्छा अच्छा। डॉक्टर डॉक्टर जी, साहब, स्मॉल डोज क्या डॉक्टर साहब, क्या एक किडनी की प्रश्न प्रॉब्लम मेरा में है। आलू भी बना है? क्या आलू, किस में? किडनी में आलू क्या इफेक्ट करता है? क्योंकि नहीं पोटेशियम बहुत होता है उसमें। कैल्शियम के नहीं साथ नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा इनको बहुत आलू तो खुद- खा ही सकते हैं। कैल्शियम ले डॉक्टर साहब, अच्छा, कैल्शियम की बात मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कैल्शियम टैबलेट ये जो मिल रही हैं सेंट्रम हाँ, वगैरह की, और ये क्या ली जा सकती है ये? ली जा सकती है, सब कैल्शियम कार्बोनेट होता है, खड़िया होती है। ओ राइट राइट। हाँ, बस गोली बना देते हैं तो कीमत उसकी 100 गुनी हो जाती है। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। और इट इज राघवेंद्र जी, हाँ राघवेंद्र जी, हाँ किडनी हाँ। डिसीज पे कैल्शियम देते ही हैं, शेल कैल की गोली सुबह शाम दी जाती है उसमें किडनी डिसीज में, अच्छा। क्योंकि किडनी डिसीज में फास्फोरस बढ़ जाता है, तो फास्फोरस को न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम कैल्शियम फॉस्फेट देते हैं। बनाता है। हाँ ओके। डॉक्टर साहब, हाँ, प्रॉब्लम क्या है फॉस्फेट बढ़ कि जाता है हम और लोग जब गूगल में जाते हैं तो दुनिया भर का इंफॉर्मेशन दे देता है, तो गूगल बहुत बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। ये डॉक्टर साहब एक चीज पूछना था, ये ग्लूकोजामाइन और कैल्शियम इकट्ठे ले सकते हैं क्या? ये ले सकते हैं। ग्लूकोसामिन कॉन्ड्राइटिन सल्फेट के सामने आता है, अच्छा, जो नी के लिए आता है ना, ग्लूकोसामिन, और वो जॉइंट्स के लिए आता है ग्लूकोसामिन प्लस कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। वो होता है एनिमल के कार्टिलेज से बनाया जाता है। अच्छा, हाँ, तो उसके साथ मतलब शेल का लैम्प वगैरह ले सकते हैं उसके साथ? बिल्कुल ले सकते हैं, शेल कैलम ले सकते हैं। अच्छा, बट इसका लॉन्ग टर्म कोई इफेक्ट है या कोई मतलब टाइम बाउंड होता है इसका? एक्चुअली इन एल्डरली पीपल 1000 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम इज रिकमेंडेड, लेकिन लोग एक ही गोली 500 ही खा पाते हैं। हाँ जी। 1000 कैल्शियम खाना आसान नहीं होता, बेल्चिंग होती रहती है, पेट फूलता है। आई थिंक कैल्शियम नॉर्मल नेचुरल सोर्स से। नेचुरल सोर्स तो मिल्क है, पनीर है। और एक आयरन की टैबलेट होती है 4 फीट, डॉक्टर साहब वो कंटिन्यूस लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? जब हीमोग्लोबिन पूरा हो जाए तो नहीं लेनी चाहिए। किडनी पेशेंट के लिए टोफू है? क्या चीज? टोफू टोफू ठीक है, इट इज सोयाबीन, वो तो हाई सोयाबीन प्रोटीन होता है, नहीं, तो सोयाबीन किडनी होता है। पेशेंट को ज्यादा हाई प्रोटीन फूड तो नुकसान नहीं करता। अगर क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो नुकसान करेगा, क्रिएटिनिन नॉर्मल है 1 से नीचे है तो नहीं नुकसान करेगा। डॉक्टर साहब कुछ किसी लोग और का कोई सवाल है? जी तो कहते हैं कि मैं चूना केशव नहीं बोल रहा हूँ। जी 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 हेलो, जी, आई नमस्कार हैव ए क्वेश्चन। जी। एक्चुअली मेरी फोटो नहीं या आ रही कैमरे की वजह से। मेरे हाँ को हाँ प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट है, और जब मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो वो बोलते हैं कि ये 40 का साइज जो है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जिसको ऑपरेट किया जाए, और मेरे को सही बार कहते हैं। बार यूटीआई होती है। हाँ इसका कोई प्रिवेंशन है जी? हाँ, इसकी प्रोस्टेट की दवा तो उन्होंने दी होगी, सिलोडोसिन। हाँ जी, हाँ जी, वो पर वो फिर भी कभी कभी मतलब इन्फेक्शन हो ही जाती है। अच्छा, तो एक तो अल्ट्रासाउंड में प्रोस्टेट की कौन सी लोब एनलार्ज्ड है, इफ इट इज अच्छा मीडियन लोब देन यू हैव टू गेट इट ऑपरेटेड। अगर मीडियन लोब नहीं है, लेटरल लोब्स है, देन ऑपरेशन इज नॉट नेसेसरी। ठीक।
हाँ, थैंक यू सो तो मच। मेरे ख्याल से जो बार बार यूरिन हो रही है तो हो सकता है कि मीडियन लोब एनलार्ज हो, एक दफे में पूरी नहीं निकलती, फिर बार बार जाना पड़ता है। नहीं, बीच तो में ठीक हो सिर्फ जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है, मतलब फ्लो भी नॉर्मल हो जाता है, पर हाँ पता हाँ, नहीं सडनली समथिंग हैपेंस। तो वो सिलोडोसिन प्लेन ले रहे हैं कि विद ड्यूटास्टेरॉइड? सिलोडॉल डी ले रहे हैं कि प्लेन हाँ, सिलोडॉल? नहीं, डी ले रहा हूँ जी। डी ठीक है। यूरिन टेस्ट करा लीजिए, इन्फेक्शन हो सकता है। कराया जी, पर वो कल्चर में भी कभी कभी आता नहीं है। और तो फिर ऐसा है ना कि सुपरफिशियल यूरेथ्राइटिस होगी, अंदर इन्फेक्शन नहीं है, बाहर ही बाहर है। जी जी, उसका हाँ, कोई इलाज है? इलाज तो है, लेकिन हम्म, जो यूरोलॉजिस्ट देख के बताएगा कि इन्फेक्शन कहाँ है। ठीक मे है। बी द इन्फेक्शन इज ओनली इन द प्रोस्टेट, प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। हम्म। और हाँ, अगर प्रोस्टेटाइटिस है तो पीएसए बढ़ा होगा। नहीं, पीएसए मेरा नॉर्मल रहता है, मतलब कोई कि, ये मतलब 1 से नीचे ही रहता है। कितना है? 1 से नीचे? हाँ जी। अच्छा, तो ठीक है। तो फिर एक तो शाम को 7 बजे के बाद पानी मत पीजिए, जो पानी पीना दिन में पीजिए, रात में मत पीजिए पानी। जी, हाँ, और क्या, कई चीजें ऐसी जिनसे मैं पेशाब अभी बहुत जो आती है। आपने बताया मीडिया लोब जो है वो चेक करवाऊंगा जी, मतलब हाँ, वो मीडियन होता लोब, है। मीडियन लोब। दूसरी चीज हाँ एक और है, अगर आप हाँ जी। ये माड़ वाली चीज खाएंगे तो पेशाब ज्यादा आएगी। जैसे साबूदाना है, ब्रेड है, बिस्किट है, ये खाएंगे तो पेशाब ज्यादा आएगी। जी जी। क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च जो होता है, जब बॉडी के अंदर ये मेटाबोलाइज होता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है। जब शुगर ब्रेक करती है, शुगर मींस ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स, जब ये ब्रेक होते हैं तो इसमें एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और दूसरा वाटर H2O निकलता है। तो फिर जब पानी ज्यादा बढ़ेगा ब्लड में तो फिर पेशाब आएगी। तो कार्ब शुड बी अवॉइडेड इन नाइट टाइम। इनसे पेट भी भारी होता है, पेशाब भी ज्यादा आती है। ठीक है। और डायबिटीज तो नहीं है आपको? नहीं, डायबिटीज नहीं। अच्छा, तो ठीक है, कार्ब्स थोड़ा अवॉइड करिएगा रात में, और जो पानी वानी अच्छा, जितना पीना है वो दोपहर में पीजिए, दिन में पीजिए। ठीक हाँ, ठीक रात में पानी की इंटेक कम कर दीजिए। ठीक दूसरा है। एक और चीज है, हाँ एसी जी, कितने पे चलाते हैं? एसी हम अराउंड 25 पे रखते हैं। 27 कर दीजिए। एसी अगर आपको ज्यादा ठंडा करेगा तो ज्यादा पेशाब आएगी। ज्यादा पसंद जी, 27 कर दीजिए सीधे। ठीक है डॉक्टर साहब। 27 करिए, और मत ओढ़िए कुछ, पतली चादर ओढ़िए। और जी, अगर आप जयपुरी रजाई ओढ़ेंगे तो फिर आपको 24-25 पे करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन है। जी, हाँ, बताइए बताइए, कौन बोल डॉक्टर रहा था? साहब अगर नींद नहीं आती है तो स्लीपिंग पिल लेना सेफ है और नहीं? हाँ, सभी नहीं, सभी नहीं। ज़ोलपीडेम इज सेफेस्ट। हेलो, हाँ जी। ज़ोलपीडेम 5 मिलीग्राम इज सेफेस्ट। बाकी सब जो बेंजोडायज़ेपिन ग्रुप की होती हैं, जैसे एटीवन है, लार्पोज है, ये सब क्लोनाजिपैम है, जिनमें पैम बाद में जुड़ा होता है, वो ठीक हैबिट फॉर्मिंग होती है। ओनली ज़ोलपीडेम इज सेफ। हाँ, ज़ोलपीडेम ज़ोलफ्रेश नाम से आती है या इंजोफ्रेश नाम से आती है, एंड एट द मोस्ट 5 mg। और एक बात बताएं, मुझे भी खाना पड़ती है कभी कभी, तो मैं अच्छा जी। गोली निगलता नहीं हूं कि वो खाने में जाके, पेट में जाके खाने के साथ डाइल्यूट हो जाती है। ओके। तो बेस्ट ये है कि ज़ोलपीडेम की 5 मिलीग्राम की गोली आधी तोड़ के जीभ के नीचे रख लीजिए, जी। तो नींद आ जाएगी। ओके। हाँ, लेकिन थैंक अगर पूरी गोली खाएंगी तो ज्यादा असर होगा, 8-9 बजे सो के उठेंगी। तो आधी गोली ज़ोलपीडेम की 5 मिलीग्राम की, यानी 2.5 मिलीग्राम जीभ के नीचे रख लीजिए,
अगर उससे काम चल जाता तो पूरी 5 mg नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि जीभ के नीचे रखने से दवा फौरन एब्जॉर्ब हो जाती, जल्दी नींद आ जाएगी। थैंक यू थैंक यू। हाँ, अच्छा। डॉक्टर साहब ये इसके ये नींद ये ज़ोलपीडेम जीभ के नीचे रखने वाला कोई नहीं बताएगा। सब लोग कहेंगे खा लो गोली, खा लेकिन लो, ये कोई हाँ नहीं जी। कहेगा कि जीभ के नीचे रख लो तो जल्दी असर होता है। जैसे हार्ट वाली होती है ना, आइसोर्डिल या सॉर्बिट्रेट, तो जब चेस्ट पेन होता है तो जीभ के नीचे रखते हैं। चल रही है। Hmm. बहुत And अच्छी at last, there is a sentence to it. Never ignore your chest pain और chest discomfort, छाती में भारीपन लगे या पेन हो, उसको इग्नोर मत करिए। गैस कह के मन को मत बहलाइए। गैस नहीं है, ये हार्ट का हो सकता, फौरन चेकअप कराना चाहिए। There is nothing like गैस। और लोग गैस कह के अपने आप को धोखा देते हैं। तो इसके लिए कोई प्रिवेंटिव मेडिसिन घर में रखनी चाहिए इसके चेस्ट पेन वगैरह के लिए? जी जी, सॉर्बिट्रेट 5 mg टैबलेट, वो जीभ के नीचे रखी जाती है। दूसरा, फिर अगर हार्ट में प्रॉब्लम निकलती है तो फिर स्टैटिन्स भी लिए जाते हैं। अरविंद जी, अब वाइंड अप करें। बिल्कुल। एनी अदर क्वेश्चंस? जाओ नहीं डॉक्टर के पास। Can I request Mrs. Dixit to please conclude the session? हाँ। मिसेस दीक्षित का एक सीक्रेट मुझे पता लगा। यहाँ सब जानते हैं। यहाँ वो जानते हैं सारे। वेरी वेरी गुड कथक डांसर। हाँ। ये मुझे मिसेस जैदी ने बताया जैनब जैदी जी ने। डॉक्टर साहब एक चीज और, ये क्या आ गया? जब चेस्ट पेन फोन कट गया, बोल रहे हैं कि आवाज आ रही है। किसी ने सवाल पूछा, एक मिनट। इग्नोर मत कीजिए जी। तो क्या फर्स्ट स्टेप? सॉरी, फिर से पूछिए। चेस्ट पेन के लिए बोल रहे हैं कि गैस नहीं समझकर वो करिए, तो फर्स्ट हाँ। क्या किया जाए? अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो सॉर्बिट्रेट 5 mg की गोली जीभ के नीचे रखिए, और जी। अगर 10-15 मिनट में दर्द नहीं जाता है तो फिर हॉस्पिटल जाइए, रिस्क मत लीजिए। क्योंकि गैस नाम की कोई बीमारी नहीं होती। अच्छा। गैस के नाम पे हम लोग अपने आप को डर की वजह से कहते हैं गैस है गैस है, इसको इग्नोर करते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती। तो गैस सोच के अपने 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 तकलीफ को इग्नोर मत करिए। अगर सॉर्बिट्रेट से 5 मिनट में दर्द नहीं ठीक होता, यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल। ईसीजी होगा, डॉक्टर चेक करेगा, है ना, टाइम से इलाज मिल जाएगा। डॉक्टर साहब एक और पूछना था, ये मेलाटोनिन नींद में हेल्प करती है क्या? हाँ, करती है। मेलाटोनिन इज गुड। बिकॉज मेलाटोनिन इज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। एक और बात डॉक्टर साहब, जैसे अगर सॉर्बिट्रेट ना हो घर में तो क्या हाँ। डिस्पिरिन भी ले सकते हैं? नहीं, जब सीने में दर्द के साथ में कस के पसीना आए, पर्सपिरेशन हो तो लेनी चाहिए, ऐसे नहीं। सॉर्बिट्रेट तो रखिए, बहुत सस्ती, 2 रुपए में 10-20 गोली आ जाएंगी। डॉक्टर साहब कौन सी बताइए, पसीना आता है तो कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए? अगर चेस्ट पेन के साथ में पसीना आ गया, कस के हाँ। पसीना आ गया, जैसे पर्सपिरेशन आजकल गर्मियों में धूप में हो जाता है ना, तो फिर हॉस्पिटल जाना चाहिए। वो हार्ट अटैक है। अगर चेस्ट पेन के साथ में पसीना आ गया तब तो हार्ट अटैक है। एनी चेस्ट पेन विच स्टेज मोर देन 30 मिनट्स इज हार्ट अटैक। तब तो डिस्प्रिन 300 मिलीग्राम या एस्पिरिन 300 मिलीग्राम और एटोर्वास्टैटिन 40 मिलीग्राम लेके हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। एस्पिरिन 300 mg
और एटोर्वास्टैटिन स्टैटिन 40 मिलीग्राम। 300 statin. I think finish. Okay. Doctor, may I ask you a question? Yeah, sure. Hello. Go ahead. This is You're V.K. most Mehta. welcome. Yeah. जी I have got a हाँ, back Mehta जी। pain. My L4, L5, S1 have got a lot of giving me a lot of limitation. So doctor has suggested me to take trigabatin. So is it going to make any difference or it is just It's a trigabalin or gabapentin is a nerve pain killer. exactly? It's a pain killer for nerves. Okay. आपको दो काम करने हैं। एक तो बेल्ट पहनी है, एलएस बेल्ट, चौड़ी सी बेल्ट आती है जिसमें पीछे मेटल लगा होता है। बेल्ट पहनिए, कमर का बेजा इस्तेमाल मत करिए, कोई झुक के सामान मत उठाइए। ठीक है। हाँ, कमर की कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे कमर पे जोर पड़े। देर तक खड़े मत रहिए, जैसे कमर में हल्का हल्का दर्द हो बैठ जाइए। ये सब प्रिकॉशंस हैं। इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। एक हड्डी के डॉक्टर से या ऑर्थोपेडिक सर्जन से इसके बारे में एडवाइस लीजिए। दवा मत लीजिए उससे, लेकिन एडवाइस जरूर लीजिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये बहुत जरूरी एडवाइस है। तो मैं 3-4 डॉक्टर से ले चुका हूँ, बट someone suggested me go in for an immediate surgery. Someone suggested me keep on cycling and do some exercises and go to the this therapist. तो मेरे को साइकिलिंग एक्सरसाइज और थेरेपिस्ट पे पास जाने से थोड़ा रिलीफ मिला है। So shall I continue with my cycling or this exercises? यस यस। और थेरेपिस्ट से कहिए मुझे ट्रैक्शन लगाए। रीढ़ की That's what he has हड्डी को not done लंबा so far. करे, रीढ़ की हड्डी को लंबा करे, खींचे। दैट इज कॉल्ड ट्रैक्शन, लंबर Yeah, I know ट्रैक्शन। traction. Yes. हाँ, वो ट्रैक्शन से सबसे ज्यादा हेल्प मिलेगी। आप दूर बैठे, मेरे पास भी फैसिलिटी नहीं तो मैं आपको यही घर में पलंग पे लेट जाइए, थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। किसी बच्चे को कहिए कि मेरे दोनों पैर खींचे, आप पीछे से पलंग पकड़ लीजिए। कोई बच्चे से कहिए कि मेरे पैर सीधे सीधे खींचे। ट्रैक्शन से वो जो नर्व कॉम्प्रेस हो रही है बैकबोन में, लंबर स्पाइन में, उसको रिलैक्सेशन मिलेगा। ट्रैक्शन इज द बेस्ट थिंग टू डू। और बच्चा नहीं हो तो बीबी भी तो खींच सकती है। हाँ, बीबी खींच सकती है। बीबी बेदर्दी से खींचेगी। सर बीबी तो कान खींचती है, टांग थोड़ी खींचेगी। Great. Thank you. Thanks for the advice. Thank you very much. Most welcome. Thank you. हाँ, मिसेस इजाजत तो मुझे मिसेस मधु दीक्षित डॉक्टर से लेना है। एक मिनट इसको सजेशन दे देंगे, अलग से वीके मेहता से बात कर लीजिएगा। जी, हम लोगों ने चंडीगढ़ में हमारी प्रॉब्लम थी मैडम की, और उन्होंने एडवाइस किया था कि ऑपरेशन करना है। वह राज बहादुर करके एक डॉक्टर है, वो ऑर्थोपेडिक है, वो उनसे मिलिए। उन्होंने देखते ही कहा कि कोई ऐसी जरूरत नहीं है, और उन्होंने वो ज्यादा सही है। उन्होंने कहा लेटने का जो बेस्ट मतलब अगर जो बैक में प्रॉब्लम है तो स्ट्रेट कभी मत लेटिए। उनका बेस्ट पोज जो है वो बच्चा जो माँ के पेट में रहता ना, जिस पोज में, दैट इज द बेस्ट पोज टू लाई डाउन। फीटल पोजीशन। जी। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, बैक प्रॉब्लम के बारे में, इफ एवरीबॉडी इज लिसनिंग। आज से 15 साल पहले मेरी वाइफ को बैक में प्रॉब्लम हुई, वही लंबर स्पाइन पे बहुत पेन था, पैर तक दर्द जाता था। तो मैंने दिखाया ऑर्थोपेडिक सर्जन को और न्यूरो सर्जन को दिखाया। वो बोला कल आ जाओ, मैं सर्जरी करूंगा। तो कानपुर में डॉक्टर IN वाजपेयी हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, मेरे दोस्त हैं। तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, नो सर्जरी इज नीडेड।
उन्होंने थोड़ी दवा वही गाबापेंटिन वगैरह लिख दी और उन्होंने वही ट्रैक्शन बता दिया, वो ठीक हो गई, बगैर सर्जरी के ठीक हो गई। और जिसने आज तक सर्जरी कराया है वो अभी तक दुखी है। Exactly. Some people have gone into a vegetable state even. यस, जिन्होंने लंबर स्पाइन में सर्जरी कराई है, लैमिनेक्टमी कहते हैं, वो सब परेशान है, अभी तक कोई ठीक नहीं है। That's right. और मैं बच गया, मेरी बीवी बच गई, मैंने सर्जरी नहीं कराई, ट्रैक्शन से और वो जो गाबापेंटिन है उससे काम चलाया, ठीक हो गई। और गाबापेंटिन भी ज्यादा नहीं, 100 मिलीग्राम सुबह शाम बस। Exactly. 100 ही ले रहा हूँ मैं। हाँ, 100 सुबह शाम लीजिए। गाबा न्यूरॉन एंटी आती है, एंटी विद नॉट ट्रिप्टलिन, सुबह शाम लीजिए, नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद में, और ट्रैक्शन लगवा लीजिए, उससे अच्छा कुछ भी नहीं। उससे नींद बहुत आती है। I sleep almost 14 to 16 hours a day. That's why I said after meals. रात को सो जाता हूँ, दोपहर में सो लेता हूँ, और शाम को रात को फिर जल्दी सो जाता हूँ। वो नाश्ते के बाद लीजिए सुबह। दूसरी बात ये, स्टैटिन्स तो नहीं ले रहे हैं? नहीं रखता। हाँ, क्योंकि स्टैटिन्स लेने से भी आदमी सुस्त हो जाता है। नहीं, आई एम नॉट अगेंस्ट स्टैटिन्स, लेकिन स्टैटिन्स सुस्ती करते हैं। तो ठीक, गाबापेंटिन इज गुड इनफ फॉर मी। गाबापेंटिन विद एंटी, नॉट ट्रिप्टलिन, जो जगाने के लिए होती है, दैट इज मेंटल एनर्जाइगर, मतलब दिमाग को अलर्ट करती है, नॉट ट्रिप्टलिन। But mine is GABA. It is not gabapentin. It is gabatin. Sorry, GABA. Trigabatin. अच्छा, चलो बस। हाँ, ट्राइगाबापेन, मुझे नहीं मालूम, उसमें 2-3 ड्रग्स और भी होंगी। Okay. Doctor, how long we can take it? Prescribed to me by PGI doctors, and he said कि you keep on cycling and take this medicine and you will be all right. हाँ, इसका मतलब ट्राइगाबापेन में 3 दवाइयां हैं। Exactly. And I am advising only 2, गाबापेंटिन एंड नॉरट्रिप्टलिन। सिर्फ 2 से काम चलाइए, तीसरी से हो सकता सुस्ती आती हो, मुझे नहीं मालूम उसमें क्या है। You can send me the photograph or picture of that medicine. Sure. Doctor, how long one should take this gabapentin anti? Till the pain is there. दर्द ठीक हो जाता है, बंद कर दीजिए। It can be taken for 1 month or 2 months, 3 months. Certainly can be taken, लेकिन अगर आप ट्रैक्शन कराएंगे तो बंद हो सकती है, आराम से, जल्दी बंद हो जाएगी। ट्रैक्शन ट्राई करूंगा डॉक्टर। ट्रैक्शन जो होता है, दिस इज माय मेडिसिन। हाँ, उल्टी है, उल्टा है। Okay. This is the right side. या नहीं, पढ़ने में हिल गई। ओके, मैं पढ़ के बाद में भेज दीजिएगा मेहता जी। हाँ, हम आपको बता देंगे, नंबर दे देंगे डॉक्टर साहब का व्हाट्सएप पर। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत डिटेल में सारी बातें बताई। और आज हम लोग दीक्षित साहब एक मिनट, बताइए। Let me talk to doctor for a moment. Okay. Doctor, this contains gabapentin IP 100 mg, mecobalamin IP 0.5 mg, and alpha lipoic acid IP 100 mg. रिच डॉक्टर ने आपको महंगी दवा लिख दी। डॉक्टर साहब पीजीआई डॉक्टर। हाँ, तो क्या हो गया, बड़ी बिल्डिंग में बड़े डॉक्टर नहीं होते। ओके, एक सब लोग, आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए, सब लोग, माय रिक्वेस्ट, बड़ी बिल्डिंग में चाहे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे एसजीपीजी हो, बड़ी बिल्डिंग में बड़े डॉक्टर नहीं होते हैं। ओके, अल्फा लाइपोइक एसिड इज ए वेरी एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट। खाली मेगा न्यूरॉन एंटी, gabapentin plus nortriptyline will do wonders. gabapentin and nortriptyline. Anti. Okay. हाँ, nortriptyline. हाँ, nortriptyline 10 mg, इसी से काम हो जाएगा।
अल्फा लाइपोइक एसिड आंख के अंदर गांठ के पूरे को लिखते हैं। ओके, ठीक है, हमारे लिए तो वही है। हाँ, अच्छा सुनिए, और एक बात और बताएं, सुन लीजिए कि जनाब, क्या शुभ नाम की आपका क्या है? आई एम वीके मेहता। हाँ मेहता जी, एक बात और बता दें, ट्रैपलिन वर्ड बोल रहे हैं ना, तो गाबापेन यूरोट्रैपलिन जो हो गया ना, वो एनओटी हो जो गया। यंग डॉक्टर्स हैं बिलो 50 years of age, they don't जी। consider the cost of medicine. एग्जैक्टली। हमारे जैसे बुढ़े लोग जो साइकिल पे चढ़ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाते थे, वो मेडिसिन की कॉस्ट को भी सोचते हैं कि आदमी हम खा सकेगा आगे कि छोड़ देगा। आजकल के यंग डॉक्टर्स हु आर लेस देन 50 years of age, वो सोचते ही नहीं कि कितनी महंगी मैं दवा लिख रहा हूँ, कितनी फालतू दवा लिख रहा हूँ। हाँ, ये 21 रुपए की एक टैबलेट है वो। ठीक है, और वो गाबान्यूरोन एंटी आधे से भी कम में आएगी। वो भी जेनेरिक लीजिए, दवा इंडिया से लीजिए। डॉक्टर साहब, कैन दिस मेडिसिन बी सर्कुलेटेड ऑन दिस मीडिया? पूछ रहे हैं, आजा। कौन सी? ये जो आप बता रहे हैं, अगर ये इसका फिर नाम अनइथिकल वो अनइथिकल हो जाएगा। मेडिसिन कैन नॉट बी एडवर्टाइज्ड और सर्कुलेटेड। नहीं, नॉट सर्कुलेटेड, बट यू कैन पोस्ट इट टू मी ओनली। I can post it to you. If you talk to me on your phone, I'll send this name on WhatsApp. Because after Corona, after COVID, the government has allowed consultation. Sure, thank you. Arvind, Previously it was illegal. Arvind, can you get me the phone number of doctor? Yes, Sure, आपको get it from मेहता जी मिल जाएगा। मेहता, हमारे घर आओ तुम। हाँ जी, ग्रेटर नोएडा आ जाओ। वो बहुत ग्रेटर नोएडा तो मेरे घर से बहुत दूर है। अभी नहीं है। अब जब तक मेरी बैक पेन ठीक नहीं होती, मेरे लिए तो अरविंद का घर भी बहुत दूर है। ये तो मेहता जी अगर कहाँ मैं- से थे? मैं पंचकुला में डॉक्टर साहब का आप डेली मेडिसिन दे लीजिएगा। अच्छा, फिनिश करें क्या यहाँ पे? एक मिनट यार, प्लीज, थैंक यू वेरी मच। हम लोग 2 घंटे तक बात करते रहे हैं, टाइम का पता भी नहीं चला। हाँ, और बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगा। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि कानपुर में डॉक्टर साहब की इतनी प्रैक्टिस थी कि लाइन लगती थी, आपको 1-2 दिन का टाइम देना पड़ता था, उसके बाद ही डॉक्टर साहब मिलते थे। हमारे घर के पास साथ रहते थे। हमने कभी इस चीज को रियलाइज नहीं किया। जब यहाँ मिले तब पता चला कि डॉक्टर साहब की इतनी इंपॉर्टेंस है कि अभी भी डॉक्टर साहब को कानपुर से फोन आते रहते हैं इनके पेशेंट्स के, और उनको ये एडवाइस करते हैं। वीडियो कॉल और होता है, अभी- टेली कंसल्टेशन होता है। आधे मरीज तो कानपुर के होते हैं। कानपुर के होते हैं। और डॉक्टर मैं भी अभी कानपुर से ही हूँ। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जी। डॉक्टर साहब बहुत ही जल्दी दो अस्पताल यहाँ पे है जो कंसीडर कर रहे हैं डॉक्टर साहब को, तो इस एज में भी उनको ज्वाइन करने के लिए तैयार बैठे हैं। बहुत कम पैसे दे रहे हैं, वो सारा वो टैक्स में चला जाएगा। वो हमारी स्लैब बढ़ जाएगी और वो सारा उसमें टैक्स में चला जाएगा। इतने कम पैसे दे रहे हैं कि जाने का मन नहीं रिच करता। सर्कल में आ जाओगे ना डॉक्टर साहब, हैं? आप रिच वाले सर्कल में आ जाओगे ना। नहीं, फिर जितना जो कमाएंगे वो टैक्स में चला जाएगा। ऑलरेडी हमारा मतलब काफी लंबी टैक्स देते हैं, हायर उसमें है। लेकिन अगर वो हमको तनख्वाह देते हैं, 2 लाख भी देते हैं, तो फिर 24 लाख का टैक्स देना पड़ेगा। बहुत ज्यादा हो जाता है, बचेगा क्या? आप किसी एमबीए फाइनेंस को ढूंढ लीजिए। हाँ, वो है हमारे पास, सीए है। हम बता देंगे, तो टैक्स बता देंगे। उससे पूछा, बोला जितना जान खपाओगे उससे ज्यादा तो पैसे चले जाएंगे, उसे मिलेगा कुछ नहीं। जान खपाओगे 6-7 घंटा रोज। हम सब लोग भूल गए, आज बहुत इम्पोर्टेंट डे था, आज डॉक्टर्स हाँ। डे है, तो आज बहुत डॉक्टर्स अच्छे डे दिन है, हमने exactly। आज टॉक किए। हाँ, और डॉक्टर बीसी रे का जो वहाँ के बंगाल के वो थे, उनका बर्थडे था। उसी पे डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। तो वी आर थैंकफुल टू दिस नोबल प्रोफेशन। और ये तो हमारी जब से सृष्टि है तब से धन्वंतरी का रूप समुद्र मंथन में उत्पन्न होना इस बात का प्रतीक ही है कि जब से मनुष्य है तब से ये एक व्यवस्था है। सेकंड में गला साफ कर लूं आपका। हाँ नहीं, कथक आप बस वाइंड अप ही कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। नहीं,
आना वापस आ जाता। एक मिनट Arvind, Arvind, thank you very much, Arvind, that you have arranged everything, and Yeah. it's a nice session. And I think कोविड के बाद पहली बार इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। आज मैं देख रहा हूँ इसमें 24 आदमी थे, 24 लोग थे यहाँ पे। 24 लोग थे। ओके, जी, गुड। 24 लोग थे इसमें। हाँ। सर 28 है सर। 24 और I hope my talk was helpful to them. Yeah. I think रिकॉर्डिंग की हुई इसकी। हाँ, So the my topic is very time will be useful if they get some help out of it. डॉक्टर साहब इसकी रिकॉर्डिंग की है हम लोगों ने। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। रिकॉर्डिंग की है, देखते हैं। डॉक्टर अरुण साहब जी ने रिकॉर्डिंग की होगी तो देखते हैं। पहले आया तो था, मैसेज आया था कि रिकॉर्डिंग हो रही है इसका। हाँ रिकॉर्डिंग हुई जी है शायद। हाँ। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन है मेरा